ये लीजिए। हाँ 600 देख रहे हैं, 550 दे रहे हैं आप। देखिए ये वाला। हाँ ये वाला कितने का है? 1650। এত দাম কেন বুঝতে পারি না। এত দাম এগুলো? চাটনি দিয়ে খাচ্ছি। আমরা নবাবদের মহল ঘোরা শেষ করে এবার এখানকার বিখ্যাত চিকেন শাড়ি এবং কুর্তি দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। আমরা এখানকার লখনৌর বিখ্যাত চিকেন কারি, কুর্তি আর চিকেন শাড়ি, তো ওইটাই দেখতে এসেছি। যদি পছন্দ হয় তাহলে এখান থেকে নেব, দেখি কী কী দেখায়। এই দোকানে ঢুকেছি। শাড়ির আইটেম দেখাচ্ছে, চিকেন শাড়ি। কিছু শাড়ি আছেন 800, 850, 900, 950 এর মধ্যে। देखिए ये वाला। हाँ ये वाला कितने का है? 1650। जा इसके कलर और ना 1650। इसके वो तो इसका बड़ा साइज 1650 টাকা দাম বলছে। চিকেন কারি কুর্তি বলছে। इसका बड़ा देना, ठीक है, कलर बड़ा देना। চিকেন কুর্তি ও শাড়ি দেখে আমাদের খুব একটা খারাপ লাগলো না, কিন্তু যেখানে তৈরি হচ্ছে সেখানে দাম হিসেবে অনেকটাই বেশি। मल्टी वो भी होगा ब्लैक से। ये लीजिए। हाँ 600 देख रहे हैं, 550 दे रहे हैं आप। हाँ बताइए। ये सूता का डिफरेंस है ना? वही तो आपको देखना है। 550 का दे रहे हैं, ऑनलाइन में आप 600 650 ले। এটা আর রকম कुर्ती। इसका नाम क्या है इस कुर्ती का? चिक्कन। देख रहे हैं चिकन और इसका दाम 500, 550, 550 টাকা দাম। এখানকার এগুলো খুব ফেমাস। এই ড্রেস, এই যে শাড়িটা দেখালাম, শাড়ি আর এই চিকেন কারি কুর্তি, এইগুলো হচ্ছে এখানকার লখনৌর ফেমাস। আর চিকেন শাড়ি আর কুর্তি এখানে নাকি ওখানকার থেকে সস্তা, তো এইখানে দেখি এখানকার রেট কেমন, রেটটাকে দেখি এখানকার। মানে বানাচ্ছে এখানে, এখানে তৈরি হয়। $750 का এগুলো 750 টাকা করে দাম আছে। এখানে দামটা কম আছে, কিন্তু যে কালারটা দরকার সেই কালারটা নেই। ব্ল্যাক কালার দরকার, ব্ল্যাক কালার নেই। তো আমি ব্ল্যাক কালারটাই নেব বলে এসেছিলাম, কিন্তু যেহেতু পাচ্ছি না সেহেতু আমি আর নিচ্ছি না এখান থেকে। এখানে আবার কালার कलर दिखा दो। এখানে রেট কেমন বলছে? একই না? না কম আছে অনেক। 1050।
ये कितना का है? এত দাম কেন বুঝতে পারে না 1250। এত দাম এগুলো आपको करवा देंगे कितना करवाएंगे? आप क्या बोले पहले पहले बोले 180 क्या बोले 80 रुपया स्टार्टिंग চিকেন কুর্তি কেনাকাটার পর আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম নিমসার বলে একটি জায়গায়, যেখানে নাকি ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চক্র পড়েছিল। নিমসার যাওয়ার পথে দুপুরের লাঞ্চটা আমরা এই হোটেলে করে নিচ্ছি। আমাদের রান্না হচ্ছে আর রুটি হচ্ছে। মানে এখানকার সিস্টেম যে হঠাৎ করে কেউ চলে এলে তখনই সঙ্গে সঙ্গে এগুলো রেডি করে, কারণ স্টক বেশি রাখে না, কখন কে আসবে কোনো ঠিক থাকে না, তো তার জন্য। আমরা এখন খাবো হচ্ছে শিমলা মির্চের পকোড়া আর ব্রেড পকোড়া আছে। ও क्या ब्रेड पकौड़ा है वो? शिमला मिर्च दीजिए। এটা শিমলা মির্চের পকোড়া আর ওখানে ব্রেড পকোড়া আছে, আলু পকোড়া। এটা খাবো, দেখি টেস্ট করে। সবাই ওরা খেয়েছে, ভালো লাগছে বলছে। শিমলা মির্চের পকোড়া খেয়ে দেখি কেমন। ভালো লাগছে, চাটনি দিয়ে খাচ্ছি। আচার, এই খাবারগুলো কী কী দেয়? ये क्या है? छोले की सब्जी, छोला सब्जी। এটা টোটাল প্লেটটা হচ্ছে 100 টাকার প্লেট। ডাল, ভাত দিচ্ছে। চালটা খুব সুন্দর, ছোটো ছোটো চাল। राइस, আর কি আছে? পেঁয়াজ, কাঁচা পেঁয়াজ। आठ लगना है। হ্যাঁ, 8 প্লেট। আর এর সঙ্গে থাকবে রুটি, রুটিটা বানাচ্ছে।
ভেতরে ঢুকছি। এই মন্দিরে নাকি ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চক্র পড়েছিল। আরও ভালোভাবে জেনে নেব এখানকার পান্ডার মুখ থেকে। আমাদের টিম সব আসছে পেছনে। आ जाए थोड़ा सा लग जाए थोड़ा कि यहाँ का महत्व आपको बताए। आपकी पूजा कराता है, श्रद्धा लेता है। जैसा समझ दिए घूमो। इसका इतिहास क्या है ये मंदिर वही बताते हुए जब 1 मिनट बैठेंगे तभी तो बताएंगे। चलिए। आए हो तो थोड़ा जानकारी दो। ये नैमिषारण्य जो तीर्थ है 4 युगों में सबसे पहले युग का तीर्थ है। सतयुग का नैमिषारण्य है। सतयुगे नैमिषारण्य, त्रेतायाम चपोस करे, त्रेता में पोषकर तीर्थ हुआ, द्वापरे कुरुक्षेत्र, द्वापर में कुरुक्षेत्र हुआ, कलहो गंगा पर्वते, कलिकाल में गंगा जी का महत्व हुआ। जब ये कलिकाल आने लगा, जब 88,000 ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा श्रेष्ठ थे, भगवान ब्रह्मा जी से आराधना किया कि हमको कोई ऐसी पवित्र भूमि स्थल जगह बताए जहाँ पर हम लोग बैठकर तपस्या करें, देती राक्षस लोग परेशान न करें। तो भगवान ब्रह्मा जी जो थे एक मन के द्वारा एक चक्र की उत्पत्ति की। कहने लगे जहाँ पे जाके ये चक्र गिर जाएगा वो तपो स्थल जगह मानी जाएगी। चक्र जो था ये सारे पृथ्वी मंडल पे घुमाया, इसको कहीं तप करने की जगह नहीं मिली थी। ये आरण्य था। आरण्य कहते हैं जंगल को। आरण्य नाम जंगल में आदि शक्ति ललिता देवी जी का यहाँ पे जो स्थान बना हुआ है वो आदि कालों से यहाँ पे वो तपस्या कर रही थी। जहाँ पे उनका चक्र गिरा हुआ है वहाँ पे उनका यज्ञ कुंड बना हुआ था। वो स्वाहा नाम का उच्चारण किया करती थी। उसका धुआं जो था आकाश लोक में जाया करता था। आकाश लोक में चक्र जब आया तब उसकी नेम में लगा। नेम कहते हैं बीच की धुरी को गाड़ी मोटर की जिसमें पहिया नाचता है। नेमी जो थी वो छीड़ हो गई। छीड़ होने से हवन कुंड में जाके नेमी गिर गया। तो गिरने से पृथ्वी के नीचे 7 पाताल है, 7 लोग ऊपर में 6.5 पातालों को भेदन किया। तब ऋषियों ने से साहाकार मचाया कर आधा पाताल ये भी टूट जाएगा तो पृथ्वी जो है जगमग्न हो जाएगी। हम लोग बैठकर तपस्या कहाँ करेंगे। फिर भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं तो भगवान ब्रह्मा जी कहते शक्ति को शक्ति काट सकती। कहने लगे महाराज का उपाय बताइए। कहने लगे जाइए आदि शक्ति ललिता देवी है, वो आदिकालों से तपस्या कर रही हैं, उन्हीं के पास जाके आराधना कीजिए। तो ऋषियों ने माँ ललिता देवी जी के पास में आराधना किया तो माँ ललिता देवी ने इसकी 6.5 पाताल पे चक्र की शिखा पकड़ लिया। शिखा चोटी को कहते हैं। 6.5 पाताल पे चक्र की शिखा पकड़ के चक्र को रोक दिया। अंदर से इसका स्वतः जल आता है और निकल के गोमती नदी को जल जाता है। ये पाताली जल अंदर से ही स्वतः आता है। और उसके बाद में आगे में वेद व्यास जी की गद्दी है जहाँ पे वेद व्यास जी ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण गीता भागवत सत्यनारायण की कथा का विभाजन किया। सूत जी ने 88,000 ऋषियों को कथा इतिहास सुनाया। जो सत्यनारायण व्रत कथा आप लोग घर पे श्रवण करती है तो पहला अध्याय यही का निकलता है कि कथा नैमिषारण्य ऋषियों सोन का दया पर पश्चिम मुनियम सूतो प्राण को फलू 5 अध्याय। पहला अध्याय नैमिषारण्य का ही देते। उसके बाद में हनुमान जी की प्रतिमा है, किस फुट की खड़ी हुई मूर्ति, कंधे पे राम लक्ष्मण, पैरों के नीचे रावण। रावण पाताल का राजा था, बलि देने के लिए पाताल लोक को चुरा ले गया था। तो क्षण मात्र के लिए यहाँ पे हनुमान जी ने विश्राम किया है। दाहिने कंधे पे राम, बाएं कंधे पे लक्ष्मण, पैरों के नीचे रावण। ये दक्षिण मुखी प्रतिमा है। 3 ये प्रतिमा है। अयोध्या में भी आसन से हनुमान जी बैठे हुए हैं। इलाहाबाद संगम पे लेटी हुई है। नैमिषारण्य में ये प्रतिमा खड़ी हुई है। और ये पितरों का पेट भी बोलते हैं। 3 गया पृथ्वी पे है। शरण गया जी बिहार में है। कृपाल जो है बद्रिकाश्रम पहाड़ में है। नैमिषारण्य ये उधर भाग है। उधर कहते हैं पेट को। यहाँ पे पितरों का पेट है। यहाँ पे पितरों के लिए पुण्य ताकत लगाते हैं जो पूजन संकल्प या पिंडदान करते हैं। पितरों का पेट भरता है। प्राणी जो है मोक्ष गति को प्राप्त होता है। उसके बाद में सूर्य जी का स्थान है जो सूर्य जी ने 88,000 ऋषियों को कथा इतिहास सुनाया। धर्मार्थ के लिए महर्षि दधीचि ऋषि ने यहाँ पे दही और नमक लगा के गौओं से शरीर चटवाया। उन्हीं का हड्डियों का वज्र बना। जब वृत्तासुर राक्षस था उसका वध किया गया। यही इसका बोलिए चक्र भगवान। अंदर में 30 फुट गहरा जल है जहाँ पे भगवान का चक्र है। वहाँ उसी के अंदर में गवर्नमेंट ने अष्टधात लोहे का टाटा डाल दिया, जाल पड़ा हुआ है। उसी से जल जो है ऊपर को छन के आया करता है। जितना भी लेवल से ज़्यादा जल होता है निकल के गोमती नदी को जल जाता है। ये पाताली जल अंदर से स्वतः बहन आता है। नैमिषारण्य सबसे पहले युग का तीर्थ है। 4 युग है। सतयुग का नैमिषारण्य है। त्रेता में पुष्कर तीर्थ की महिमा हुई। द्वापर में कुरुक्षेत्र हुआ। कलिकाल में गंगा जी का महत्व हुआ। ये जो भूमि है ये पितरों की भूमि
ही है। तो चक्र कौन से भगवान का है? ये भगवान ब्रह्मा का, ये इसको नाम ब्रह्मा बोलते हैं ब्रह्म मनोबे चक्र। भगवान ब्रह्मा ने मन के द्वारा चक्र की उत्पत्ति की। वह चक्र तो भगवान विष्णु के पास था। ब्रह्मोस चक्र। विष्णु ने भगवान ब्रह्मा को आवाहन करने के लिए दिया था, तो मन के अंदर वो धारण किया था, वही चक्र जो इसमें गिरा। এখানে এটাকে হিন্দিতে কুণ্ড বলা হয়। এইখানেই ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চক্র পড়েছিল। এখানে সবাই স্নান করতে আসে এবং পুণ্য অর্জন করে যায়। আমরাও এখানে স্নান করব আজকে। আমিও করবো এখানে স্নান। দেখুন যেভাবে করছে স্নান, এখানে চক্র পড়েছিল, তো এই জলটার মধ্যে স্নান করতে হবে, তাহলে আর কি পুণ্যি হয়। এখানকার যেটা কথা শুনে মনে হলো। আর এটা গোমতী নদীর সঙ্গে যুক্ত আছে, তো এখানকার জল নাকি শুকায় না। তো গোমতী নদীতে যেমন জল বাড়ে তেমন এখানে বাড়বে, গোমতী নদীতে যখন জল কমবে তখন এখানেও কমবে। তো এইটাই হচ্ছে এখানকার সিস্টেম। লখনৌ ট্যুর আমার এখানেই শেষ না, এরপরেও আরও অনেক ভিডিও আপনাদের জন্য করেছিলাম, কিন্তু ভুলবশত আমার ফোন থেকে সেগুলো ডিলিট হয়ে যায়। তার জন্য আমি খুব দুঃখিত। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, আবার পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কিন্তু একটা লাইক দিয়ে দেবেন আর কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আর পাশে দেখুন একটা বেল আইকন আছে, সেখানে অবশ্যই ক্লিক করে রাখুন যাতে নতুন নতুন ভিডিও এলে আপনাকে নক করবে।